We welcome you all once again to our Sunday service. हम सभी को एक और बार स्वागत करते हैं हमारे रविवार की सर्विस के लिए। We are continuing with our studies on the victory that God can give us. हम अपनी पढ़ाई से आगे बढ़ रहे हैं, विजय जो परमेश्वर हमें दे सकता है। We have been studying about King David and how God gave him the victory in the most strategic way. हम दाऊद के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे रणनीति के द्वारा, परमेश्वर की रणनीति के द्वारा उन्हें विजय प्राप्त हुई। In other words, David did not depend on his own mind and his own way of thinking and his own way of doing things, but he depended on God's plan to get victory. और दूसरे शब्दों में गिदोन ने जैसे परमेश्वर पर आश्रय रखा, ना कि अपनी सोच, अपनी बुद्धि, परंतु परमेश्वर की रणनीति, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर के विचार के हिसाब से उसने अपना कार्य आगे बढ़ाया। And we've been looking at the victory God gave a man named Gideon. और हम फिर देख रहे थे, हमने गिदोन नाम के एक व्यक्ति के ऊपर देखा जिन्हों परमेश्वर ने विजय दिया। Now, one thing we have learned about God is that God likes to do things in a supernatural way. और एक चीज हमने परमेश्वर के बारे में जो सीखी है, परमेश्वर कार्यों को करना चाहता है और असंभव कार्यों को करना चाहता है। In other words, he takes the natural and makes something supernatural out of it. सरल शब्दों में बताया जाए तो प्राकृतिक चीजों को उठाकर अप्राकृतिक या फिर अमानुषिक रीति से परमेश्वर कार्य करता है। And God is someone who loves to be recognized in everything he does. और परमेश्वर ऐसे है जो चाहते हैं कि वो जो कुछ भी करे हम उनको प्रशंसा दे या फिर हम उनको सोचे या फिर याद करें। So that is why God will take a simple person and make him do extraordinary or supernatural things. इसके लिए एक साधारण सरल व्यक्ति को परमेश्वर उठाकर उससे असाधारण चीजों को परमेश्वर करवाएगा। Praise the Lord. And with that supernatural thing that God does, you will receive victory in your life. और वो असाधारण चीजों से या फिर असंभित कार्यों से कर परमेश्वर विजय तुम्हारे जीवन में प्राप्त करवाएगा। But as we saw last week, God wants to make sure first that when you get that victory, when you get that blessing, you don't forget about him. और जैसे गए सप्ताह में हमने देखा, जब तुम्हें वो विजय, तुम्हें वो आशीष प्राप्त हो जाए तो परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। Now, you might think that this is surprising that God would think that way. और हम ऐसा सोचेंगे कि ये चौंकाने वाली बात है कि परमेश्वर ऐसा सोचेंगे। But if you really are honest with yourself and you look at mankind around you, you will see that this is exactly the way every single one of us behaves. और यदि पूर्ण सच्चाई से हम यदि सोचे, और इतिहास गवाह है जब हम देखेंगे कि मनुष्य का स्वभाव विजय की प्राप्ति के बाद, पूर्ति के बाद वो अपने आप पर निर्भय या फिर भरोसा करने लगते हैं। In all my years of pastoring, preaching, and being in the church, I can give you testimony after testimony of where God has done a supernatural work in someone's life, and then the moment they receive that victory, they forget about God. मैं अपनी कई सालों की पासवान की सेवकाई या फिर आते हुए लोगों से मिलते हुए गवाही या सुनते हुए कलीसिया में सेवकाई करते हुए मैंने देखा है, जब अमानुषिक तौर पर परमेश्वर कार्य करने लगता है, मनुष्य सब परमेश्वर को भूलकर अपने आप पर या फिर खुद में प्रशंसा लेना शुरू करता है। They come broken, they come crying, they are fasting, praying, doing everything. The moment they get what they were asking for, there's no more, you can't even know where they are anymore. They disconnect their phones, they no longer come to church, they just forget about the suffering they went through and they go enjoying the pleasures of the world. वो रोकर, हृदय टूटकर, पीस कर, ताश होकर, उपवास कर प्रार्थना कर आते हैं
जिसी क्षण में उनको प्रार्थना का जवाब मिलता है, परमेश्वर उनके लिए चमत्कार करता है, वो सब भूल जाते हैं, उनका फ़ोन बंद है, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं और वापसी अपनी दुनिया की जीवन बिताने के लिए लौट जाते हैं। So that's why in this story we saw that God first made sure that the army that Gideon had to be downsized in order to make sure that none of them would take the glory for themselves for the victory that God was going to give them. में इसके लिए इस भाग में हम ऐसा देखते हैं, गिदोन को पहला बड़े सेना को छोटा करवाया और परमेश्वर ने ये किया कि उनको परिश्रम किया और उनको उनको टेस्ट करवाया और उनसे देखा कि विजय प्राप्ति के बाद ना कि खुद की प्रशंसा करे, ताकि परमेश्वर जांच कर जाने कि ये परमेश्वर को पूरी प्रशंसा देंगे। Now, let me put one thing in your mind clear from the very beginning. एक बात आपके हृदय में या फिर सोच में स्पष्ट रीति से मैं बताना चाहता हूँ, Victory will always be yours. विजय हमेशा आपकी होगी। No matter what you are asking for, no matter what your situation, the moment you are in Jesus Christ, victory is always guaranteed. चाहे आप जो कुछ भी मांग रहे हो या फिर चाहे आप जो कुछ भी इच्छा रखते हो, अंत में विजय निश्चय रूप से आपकी होगी। This is the promise for those who choose to follow Jesus Christ. ये उनके लिए वाचा या फिर वायदा है जो परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करने की इच्छा रखते हैं। Those that have made Jesus Christ their only Lord and their only hope, those are the ones who are guaranteed victory. ये उनके लिए है जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना पिता, अपना सब कुछ मानकर, अपना हृदय देकर और पूरा समर्पण कर कर सिर्फ उन्हीं पर विश्वास और आश्रय करे, उनके लिए है ये वाचा और वायदा। Even if you suffer loss in the beginning, even if you suffer brokenness in the beginning, the end will always be victory for those that are in Jesus Christ. आमीन। शुरुआत कठोर होगा, शुरुआत कड़वा होगा, चाहे नष्ट हो, चाहे आपको कुछ लाभ ना हो, लेकिन निश्चिंत रूप से जो परमेश्वर पर विश्वास, आश्रय, भरोसा करते हैं, अंत अति अद्भुतकारी हो। Now, another thing I tell you is that you will not understand God's strategy. एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की योजना या फिर रणनीति को नहीं जान पाओगे। And you will not even agree probably with the strategy. और शायद आप उसे मान भी नहीं लोगे, परमेश्वर के जो भी योजनाएं हैं। See, many people are asking for finances. कई लोग पैसों के लिए या फिर संपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। God can create finances from the air for you right now. परमेश्वर वायुमंडल से आपके लिए पैसा या फिर संपत्ति लाकर दे सकता है। But he wants to first make sure that the finances he gives you, Amen. okay, will be used correctly. पर परमेश्वर ये ध्यान में रखना चाहता है आपके कि जो भी आपको संपत्ति मिलेगी वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी आप उपयोग में लाओगे। So that's why he wants to make sure that from the inside there is a change in your life that only he can do, so that then what you receive will be used correctly. इसके लिए परमेश्वर चाहता है जो भी परमेश्वर करने वाला है उसके लिए आपके आंतरिक हृदय में एक विद्यान आ जाए, ताकि आपको जो भी आशीषें या फिर संपत्तियां मिले वो परमेश्वर की प्रशंसा और उनके राज्य के उपयोग में के लिए की जाए। आमीन। Now, I just mentioned here finances. मैंने यहाँ सिर्फ संपत्ति या फिर पैसे के बारे में बोला, but the same rule can be applied to everything else in your life. लेकिन वही न्याय या फिर व्यवस्था जीवन के हर क्षेत्र में, हर मंडल में हम प्रयोग में ला सकते हैं। God will give you victory in your health. परमेश्वर विजय आपके शारीरिक क्षेत्रों में दे सकता है। God can give you victory in your ministry. आपकी सेवकाई में आशीष विजय देगा। God can give you victory in the prayers you prayed for others. और उस प्रार्थना में भी परमेश्वर विजय देगा जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। God can give you all the 9 gifts of the Holy Spirit right now where you are. आप जहाँ कहीं भी हो, वचन में कहे हुए आत्मा के 9 फलों को भी परमेश्वर आपको दे सकता है।
God can make you viral with the work you're doing online. आपको जाने माने हस्तियां बना सकते हैं जो ऑनलाइन की सेवकाई से आप कर रहे हो। God can even bring you that spouse that you have been praying for. आपको उस सहभागी या फिर अपना पति या फिर पत्नी हो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो भी आपके लिए लेकर आ सकता है। God can also give you the children you have been praying for. आपको संतान पुष्टि भी परमेश्वर दे सकता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। So what I'm saying with this is that when you pray according to God's will for something that you know will also please God, the answer is always yes and amen. सरल चीजों में जो कोई भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर उसका जवाब देगा और आपको विजय देगा और उसका जवाब आमीन और हाँ ही है। Because God is pleased every time you are in victory. क्योंकि परमेश्वर आनंदित होता है जब कभी आप विजयी होते हो। But the problem is you are still not in that position in your mind and your heart to be able to move forward in that victory. लेकिन आप उस क्षेत्र में या फिर उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां आपका मन और हृदय एक हो और परमेश्वर से मेल खाए। In other words, you still are depending on something that has to do with you instead of God to move forward. दूसरे शब्दों में अब तक अपने आप पर अपने बुद्धि पर प्रशंसित कर रहे हो ना कि पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर परमेश्वर कार्य करेगा ये सोचने के बदले। And this was the same problem God had with Gideon when he was going for battle. और ये ही प्रश्न था परमेश्वर को गिदेन से जो युद्ध के लिए जाते समय उसको भी ये सोच थी। Let's go to Judges chapter 7 where we're reading about Gideon. न्यायों का पुस्तक 7वें अध्याय में जाएंगे जहां हम गिदेन के बारे में पढ़ रहे हैं। And here we understood that Gideon at this point was facing, it was 32,000 soldiers of Gideon against 135,000 soldiers of the enemy army. 32,000 गिदेन की सेना 1,35,000 शत्रु विरोधी की सेना का सामना कर रहे थे। And God, this is what he tells them, Judges chapter 7, verse 2, the Lord told Gideon, you have too many soldiers with you for me to drop Midian into their hands, because Israel will become arrogant and say it was my own abilities that delivered me. क्योंकि परमेश्वर ने गिदेन से कहा तुम्हारे सामने इस्राएली सेना इतनी बड़ी है कि मैं तुम्हें मिद्यानियों को तुम्हारे हाथों में दे दूं ताकि कल इस्राएल कहेगा कि इस्राएल की श्रेष्ठता की वजह से मिद्यान हारा गया। Then verse 3, that's why you are to ask in full view of the soldiers, whoever is afraid or is trembling may go back from Mount Gilead and return home. So 22,000 soldiers left and 10,000 remained. इसके लिए परमेश्वर ने प्रचार करते हुए सेना जो भी डरा हो मारा हो थरथराता हो वो लौट जाए तो इस समय गिलेयद से 22,000 लौट गए और सिर्फ 10,000 बचे थे। So the first thing God tells Gideon is that there is a purpose behind my strategy. इसके लिए पहले चीज परमेश्वर गिदेन से कहता है एक योजना है मेरे रणनीति के पीछे। So when God is giving you a strategy, before he gives it to you, he will tell you there is something we still have to work with in your life. परमेश्वर कुछ देने के पहले ये कहेगा कि या फिर अपनी रणनीति बताने के पहले तेरे जीवन में आपके जीवन में कुछ कार्य है जो मुझे करना है पहले मेरी कार्य प्राप्ति की पूर्णता होने से पहले। That's why completely surrendering to Jesus Christ is very important in the sense that you have to completely surrender even what you desire and what you love in this life. इसके लिए पूर्ण रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्योंकि जब अपने जीवन आप समर्पण करोगे अपने जो भी इच्छा आशाएं प्रार्थनाएं करोगे तब परमेश्वर उस पर कार्य कर पाए। When you put Jesus Christ first in your life and his purpose first in your life, then God will give you the next step.
यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, मुख्य स्थान दोगे और अपने उद्देश्य को भी परमेश्वर के हित के हिसाब से दोगे, तब परमेश्वर कार्य करने लगेगा। If you're afraid of losing your identity, then you're not ready to receive that strategy. यदि अपना व्यक्तित्व खोने की हताशा में आप डर कर बैठ जाओगे, तो परमेश्वर का व्यक्तित्व आपके जीवन में नहीं आ पाए। That's why here God told Gideon, openly ask people, nobody's forcing you to come into this battle. If you're afraid, please leave. इसके लिए परमेश्वर गिदोन से कहता है, किसी को भी जबरदस्ती इस युद्ध में हम नहीं लाएंगे। यदि आपको डर लगता है तो आप छोड़कर जाइए। In other words, God already had a plan that he was going to do something so supernatural that nobody was going to understand. इसका मतलब परमेश्वर की योजना में उन्होंने पहले ही सोच के रखा था कि वो कुछ अप्राकृतिक अमानुषिक कार्य करेंगे कि कोई भी सोच भी नहीं सकता हो। You yourself will not understand why God is allowing you to suffer certain things in life. हम या फिर आप आपके जीवन में समझ नहीं पाओगे क्यों हमारे जीवन में कुछ चीजों का हम बोझ या फिर भार उठा रहे हैं या फिर कुछ क्लेशों से हम गुजर रहे। So God downsized the army, okay, from 32,000, he downsized it to 10,000. परमेश्वर ने गिदोन या फिर इस्राएली सेना को 32,000 में से 10,000 कर छोटा कर दिया। So 22,000 from the army were afraid. 22,000 लोग उस सेना में फिर भी डरे हुए थे। Are you of the ones that are afraid, or you are the ones that are willing to go forward with God's plan? आप डरने वाले झुंड में हो या फिर आप उस झुंड या फिर भागी में हो जहां परमेश्वर की योजना के साथ हम आगे जाएंगे। Most of us are afraid. हम में से अधिक लोग डरे हुए हैं। When we don't understand what's going to happen tomorrow, where the money is going to come from, are we going to get married, are we going to be accepted, we start to fear. हम में से अधिक लोग डरे हुए रहते हैं, कल क्या होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है, संपत्ति आएगी, मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। हम हमेशा डरे हुए रहते हैं। See, God will not force you to follow him. परमेश्वर कभी नहीं आपको जबरदस्ती करेगा कि उनका पीछा करें। Christ will never force you to walk in his victory. और परमेश्वर कभी तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेगा कि परमेश्वर की विजय या फिर उसकी विजयता में आप आगे बढ़े। He will show you and he will make you taste what is available through him, but he won't force you to completely surrender. परमेश्वर तुम्हें चखने देगा उस विजय या फिर भविष्य, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम उस मार्ग पर या फिर उस विजय पर या फिर उस प्यार पर आगे बढ़ते जाओ। But if you are afraid of what your family will say, यदि आपको डर लगता है कि आपका परिवार क्या कहेगा, if you're afraid what your society or community will say, या फिर आपको डर लगता होगा क्या मेरा समाज, क्या मेरा समूह कहेगा, if you're afraid of being rejected, या फिर आपको डर लगता होगा कि ठुकरा दिया जाऊंगा, then you are of the cowards. तो फिर आप उस डरपोक में से हो। Doesn't mean that you will not that doesn't mean that you will lose your salvation. का मतलब ये नहीं है कि आप रक्षा को खो दोगे। In other words, you will not stop being saved. इसका मतलब ये नहीं कि आप रक्षा प्राप्ति में से आप रुखा दिए जाओगे। But you will not be able to live in the victory that God has prepared for you. आमीन। लेकिन आप उस विजय में जी नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रचा है। We just sang the song, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. हमने अभी एक गीत गाया, क्योंकि वो जीवित है मैं कल का सामना कर सकता हूँ। In other words, you are following a living God. दूसरे शब्दों में आप एक जीवित परमेश्वर का पीछा कर रहे हो। You are following Jesus Christ who defeated death
आप यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया। Not only death, but he defeated sin and Satan. सिर्फ मृत्यु को ही नहीं, पाप और शैतान को भी हरा दिया। And he has given that authority to you and the power for you also to defeat sin and Satan. और आपको भी वो अधिकार और ताकत सामर्थ दिया है ताकि आप शैतान को हरा सको अधिकार और सामर्थ के द्वारा। See, Jesus died on the cross, physical death, परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे, शारीरिक मृत्यु, and he went down to hell. और वो नरक पाताल में गए Because at that moment he was carrying all the sins of the world. क्योंकि उस क्षण में पूरी दुनिया के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा रहे थे। But hell and sin could not hold on to him. लेकिन पाप और पाताल या फिर नरक उन्हें जकड़ नहीं रख पाए। Through that sacrifice of love, he broke all the power that was in sin and in Satan. उस प्यार के पाप याग अर्पण से उन्होंने पाप और शैतान को हरा दिया, विनाश कर दिया। So God wants you to understand that he has all the power in his hands. परमेश्वर चाहता है कि आप ये समझ पाए कि उनके हाथों में सभी ताकत और सामर्थ है। And he's asking you right now, are you bold enough to simply trust me? और वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आप सामर्थी हो मुझ में विश्वास करने के लिए? Because victory will be yours. क्योंकि विजय आपका ही होगा। But before the victory, you will have to go through a time of battling, of a war. लेकिन विजय से पहले आपको एक युद्ध में से या फिर लड़ाई में से गुजर कर जाना पड़ेगा। You won't have to fight against Satan. आपको शैतान का सामना या फिर विरोधी नहीं बनना पड़ेगा। Because Jesus Christ already defeated Satan. आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को एक बार हरा चुके हैं। You will not have to fight sin. आपको पाप का विरोध या फिर युद्ध करना नहीं पड़ेगा। Because Jesus Christ already broke the power of sin over your life. आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके जीवन के ऊपर के पाप के जो भी अधिकार थे उसको तोड़ दिया। You will have to fight against yourself. आमीन। आपको आपके खुद के विरोध में युद्ध If you want to receive the victory करना। Christ has for you, you have to battle against yourself. यदि आपको अपने विजय प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, तो आपको अपने खुद से युद्ध या फिर लड़ाई करना पड़ेगा। And the best way to fight against yourself is to simply surrender to Jesus Christ. आमीन। अपने आप से युद्ध करना उसका सबसे आसान तरीका है परमेश्वर की ओर अपने आप को समर्पण करना। See, God wants to see how desperate you are to come to him, how desperate you are for your miracle. आमीन। परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कितने हताश और कितने जरूरतमंद आप हो, इस विजय या फिर इस चंगाई के द्वारा आप आना चाहते हो परमेश्वर के पास। Before you receive that complete victory, you will have to go through the fire and through the pressure of the world. विजय प्राप्त करने से पहले आपको अग्नि या फिर आग की परीक्षा और दुनिया के जो भी आपके ऊपर लादे जाने वाले सोच विचार है उसका भी सामना करना पड़ेगा। See, Jesus already knows what is deep inside of your heart. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं, समझते हैं हृदय की गहराइयों में आपका क्या बसा है। Jesus knows that many of you or many of us that follow him only follow him because we are desperate for the blessings. परमेश्वर जानते हैं और समझते हैं हम में से अधिकांश लोग परमेश्वर का पीछा सिर्फ आशीष या फिर चंगाई या फिर अपनी कार्य प्राप्ति के लिए करते हैं। Let's go to John chapter 6. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। John chapter 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय verse 26. का 26वां वाक्य। Jesus says here, Jesus replied to them, "Truly I tell all of you with certainty, you are looking for me, not because you saw signs,
but because you ate the loaves and were completely satisfied. 26वां वाक्य, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसके लिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। आमीन। And then verse 27 says, do not work for food that perishes, but for food that lasts for eternal life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set a seal on him. आमीन। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। And then verse 28, 29, then they asked him, what must we do to perform the actions of God? Jesus answered them, this is the action of God, to believe in the one whom he has sent. आमीन। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। Amen. So Christ knows that many of us are only with him because we need that healing. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ इसके लिए है ताकि हम परमेश्वर के लिए अब चंगाई या फिर आशीषें प्राप्त करें। Yeah, he knows we are with him only because we need those finances. क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ इसीलिए है ताकि हम उस आशीषों को या फिर पैसों को प्राप्त करें। But here Christ is saying, if you really want to receive what I've prepared for you, you have to do only one thing, and that is believe in my name. यदि परमेश्वर ने जो ठहराया है, रखा है हमारे लिए प्राप्त करना है, एक ही कार्य करना है, बस मेरे नाम पर विश्वास करो। In other words, if you believe in my name, you cannot be afraid of what people will think about you. दूसरे सरल शब्दों में, यदि मेरे नाम पर विश्वास करते हो तो उस दुनिया पर तुम नहीं डरोगे कि ये सोचकर दुनिया क्या बोलेगी। And if you believe in my name, you will not afraid of your family rejecting you. यदि मेरे नाम पर विश्वास करते हो तो तुम नहीं डरोगे कि तुम्हारा परिवार तुम्हें तिरस्कार करेगा। And if you are believing in my name, you will not be afraid of God taking away something from you that you think is super important in your life. तो ये यदि आप इस नाम पर विश्वास करोगे तो आप ऐसे नहीं सोचोगे कि क्या होगा, क्या तिरस्कार मिलेगा, और असाधारण चीजों को परमेश्वर कार्य करने लगेगा। You see, the deeper you go in your Christian walk with Jesus Christ, the tougher and tougher the teachings become. आमीन। आमीन। परमेश्वर के साथ गहराई पर मसीह जीवन के साथ आप मसीह के साथ चलने लगो, जितना गहरा आप जाओगे उतना मार्ग कठोर और कठिन होता जाएगा। Praise the Lord. Because God wants to make sure you go through that fire, so that as you go through that fire, you come out pure. क्योंकि परमेश्वर चाहता है उस आग की भट्टी से जितना तुम जाओ उतना तुम साफ होकर, सफेद होकर बाहर लौट कर आओ। Because still all of us are worried about what will that person think about me. क्योंकि हम में से अभी भी सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। What will I look like if I lose this property, or if I lose this job? मुझ पर कैसा दिखेगा जब मैं ये काम मेरा नष्ट हो जाए या फिर मेरी ये संपत्ति नष्ट हो जाए। Think about it. All day long, only thing you worry about is what will that person say about me, what will that person say about me. पूरा दिन, मनुष्य की पूरी आयु इसी सोच में गुजर जाती है कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखूंगा उनके सामने। You know, the time you are most free in the Lord when you are actually rejected by everybody. आमीन। आपके जीवन में आप इतने स्वातंत्रित और इतना सफार या फिर सफेद और खुला जब रहोगे जब सभी ने आपको त्याग दिया और आपके जीवन में आप सिर्फ अकेले हो। When you realize that Jesus Christ is the only person who truly loves you, that's when you truly start to enjoy life.
आमीन। जब आपको इस बात की समझ आ जाएगी सिर्फ यीशु मसीह ने ही पूर्ण तरीके से प्रेम किया है, सिर्फ वो ही मेरे जीवन में सब कुछ है, तब आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। Because when you reach that point in your life, when Christ is everything, then Christ will start using you for the great and wonderful things He wants to do. जब उस समझ को आपके अंदर आ जाएगी कि परमेश्वर यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा सब कुछ और मेरा जीवन है, तब परमेश्वर आपको उठाकर जीवन में कार्य करने लगे। Let's jump down to verse 66 in the same chapter. यूहन्ना के अध्याय के 6वें अध्याय के 66वें वाक्य में जाएंगे। 66 John chapter 6, verse 66 and 67. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 66 और 67। Now, here Jesus has been teaching something that many people did not understand. और यीशु यहाँ ऐसा कुछ सिखा रहे हैं कि कई लोगों ने उसे समझा ही नहीं। Not they didn't understand, but actually they misinterpreted. ये नहीं कि उन्होंने नहीं समझा, लेकिन उसका अलग तरीके से उन्होंने उसे सोचने लगे। And verse 66-67 says, as a result, many of the disciples turned back and no longer associated with him. So Jesus asked the 12, do you want to leave too? Do you? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Now, Jesus Christ will ask you to bring some changes in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ विधान या फिर बदलाव लाने के लिए कहेगा। And the more you want to receive, the more you will have to change. आमीन। जितना अधिक प्राप्त करना चाहते हो, उतना अधिक बदलना पड़ेगा। You will have to break some friendships. कुछ दोस्तियां तोड़नी पड़ेगी। You will have to break some habits. कुछ स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। You have to change your desires that you have for the future in your own mind. और अपने भविष्य के बारे में जो कुछ भी सोच है, उसमें बदलाव लानी पड़ेगी। You will have to change the image you want to give people. और अपना जो सामूहिक चित्र हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। And some of the things Christ will ask you to do, you will not receive it. और जो उसमें से जो परमेश्वर तुम्हें करने के लिए कहेगा, उसे तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। And at that moment, Christ will ask you, you want to leave as well? तो तभी परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्या तुम भी उलट या फिर वापस जाना चाहते हो? Are you of those that are afraid? क्या तुम उसमें से हो जो डरते हो? Or do you trust in my name? या फिर तुम मेरे नाम में विश्वास रखते हो? Have you understood how much I love you? क्या तुम समझ पाते हो कि मेरा तुमसे कितना प्रेम या फिर लगाव है? Don't you understand that whatever you give up for me, I will give you double of that and it will be sanctified and holy? जो भी तुम देना चाहते हो, उसका दुगना मैं तुम्हें देकर पवित्र कर दूंगा। If you have to cut off with many relatives in your family because they want to accept you being a Christian, don't you know I have a bigger family prepared for you? मेरे से कुछ रिश्तेदार जो हमारे छूट दिए जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को स्वीकार दिया, तो तुम ये नहीं जानते नहीं क्या कितना बड़ा परिवार मैं तुम्हें देने वाला हूं। If I'm asking you to give up a job because it is not the right job for you, because it is in the wrong business, don't you know that I have a better business for you? तो शायद तुम्हें कारोबार अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या नहीं मैं तुम्हें एक अच्छा कारोबार या फिर बिजनेस दूंगा। In other words, God first wants to make sure that you understand who He is and what He will do for you. सबसे पहली बात परमेश्वर ये चाहता है कि तुम समझ लो कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कर सकता है। So many of the disciples at this point left Jesus. और कई चेले इस समय पर इस क्षण पर परमेश्वर को छोड़कर चले गए। And then he turns to his own close disciples, the apostles, and he asks them, do you guys want to leave as well? उस समय परमेश्वर अपने 12 जो उनके खास 12 थे, उनसे पूछा, क्या तुम भी छोड़ना चाहते हो? And here we have
A very beautiful answer that Peter gives to Jesus. और यहाँ एक अच्छा सुंदर जवाब है सीमोन पत्रोस परमेश्वर को देता है In verse 68, वाक्य 68 में। Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the words of eternal life. आमीन। शमौन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। Have you reached that point in your life yet? क्या आपके जीवन में उस भाग पर या फिर उस मोड़ पर आप पहुंचे हैं जैसे इस वाक्य के आधार पर? People are rejecting you. लोग आपको ठुकरा रहे हैं। You are losing everything you have built with your own two hands. अपने दो हाथों से जो भी कार्य किया उसे आप नष्ट होते हुए देख रहे हो। People are calling you a fool. लोग आपको एक बेवकूफ कह रहे हो। You are no longer going out to party and to get drunk. आप बाहर जाकर अय्याशी या फिर पीने के लिए नहीं जाते। In your job situation, people are lying and cheating each other, but you are honest. आपके कामकाज में लोग झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई में हो। Now, all these things are tests and trials that we have to go through. ये अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, प्राकृतिक जीवन में ये कुछ परिश्रम है जिसे हमें पार करना है, परीक्षाएं। In this time of trouble, when you are uncertain, it is Satan who will now talk to your mind and say, why don't you leave Jesus? Everything is going worse for you than before. ऐसे अनिश्चित समय पर जीवन के शैतान आकर मंत्र के तौर पर कहेगा, क्यों नहीं छोड़ देते परमेश्वर को, क्यों नहीं त्याग देते, क्योंकि इतना कुछ हुआ है तुम्हारे जीवन में। Before Jesus, you had money. यीशु के पहले तुम्हारे पास पैसा था। Before Jesus, you had many friends. यीशु के पहले कई मित्र थे। Before Jesus, your whole family was always with you. यीशु के पहले पूरा परिवार तुम्हारे साथ था। Before Jesus, you could go drink anything and do anything and you wouldn't feel bad about it. यीशु के पहले आप कुछ भी कर सकते थे, पी सकते थे और आपको उसके बारे में बुरा भी नहीं लगेगा। But now that you have Jesus, everything seems so difficult. लेकिन इस क्षण, इस समय जब यीशु आपके जीवन में है तो हर चीज आपको कठोर लगेगा। And then Satan will tell you, why don't you leave Jesus? और शैतान आपसे कहेगा, क्यों नहीं यीशु को छोड़ देते? Your answer has to be like Peter. और आपका जवाब पतरस के जैसे होना चाहिए। Where else would we go if only Jesus Christ Amen. has words of life? हालेलुया। किसके पास हम जाए? अनंत जीवन की बातों तो तेरे ही पास है परमेश्वर। The moment you have understood this secret, that is the moment you have received victory. आमीन। जिस समय इस रहस्य को आपने जान लिया हो, उसी क्षण आपके जीवन में आप विजय प्राप्त किए हो। हालेलुया। Brother Vibin mentioned about this verse before the preaching. और भाई विपिन ने इस वाक्य के बारे में बताया प्रचार के पहले। And we understood that here Jesus tells Peter that upon this truth, upon this belief, I will build my church. और इस विश्वास पर, इस नींव पर या फिर इस पत्थर पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। In other words, the moment you come to that point in your life where you know that it is only Jesus, no matter what happens in your life, nobody else matters, God will start to build through you His kingdom. Amen. आपके जीवन के उस सोच पर, उस क्षण पर जब आप सोचोगे, मेरा जीवन कोई बदल नहीं सकता यीशु मसीह के अलावा, मेरा जीवन कोई आगे बढ़ा नहीं सकता यीशु के अलावा, उस क्षण, उसी क्षण से परमेश्वर उस पर नींव डालेगा, वहां अपना कार्य करेगा। Now, you can leave everybody. आप सबको छोड़ सकते हो। The only person you cannot leave is your spouse. एक ही व्यक्ति इस दुनिया में आप नहीं छोड़ सकते, वो अपना सहभागी या फिर सहधर्मिणी या फिर आपके पति। You can forget about your parents.
अपने माता पिता के बारे में भूल सकते हो, You can forget about your children who are constantly disobedient. और आपके बच्चों के बारे में भूल सकते हो जो निश्चित रूप में आपका नहीं सुनते। You can forget about all your friends and family. सभी मित्र और दोस्तों के बारे में भूल सकते हो। You just cannot forget about your spouse. अपने पति या फिर पत्नी के बारे में आप कभी नहीं भूल सकते। And then when you forget about everything and only make Jesus first in your life, that's when victory enters in your life. अब सभी चीजों को भूल जाने के बाद सिर्फ यीशु मसीह याद रहेगा, तब आपके जीवन में विजय प्राप्त प्रवेश होगा। And this is the key. This is the key that God was doing, that God was giving Gideon. He was making them smaller on purpose, taking out all the fear so that they could move forward with what they had. यही चाबी, यही गुप्तमय रहस्य यीशु मसीह गिदियन को दे रहा था। जब तुम छोटा करो अपने आप को, जब अपने आप में नीचा हो जाओ, तब जाकर तुम्हें विजय प्राप्त होगा। And next week we will see that God even makes the army even smaller. और अगले सप्ताह हम देखेंगे परमेश्वर सेनाओं को और भी छोटा करेगा। Now in this week's teaching, just remember one thing: if you're too afraid of what people will say, you will not get the victory. आज के सीख से ये मूल्य वाक्य आप ले लीजिए, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के साथ आप विजय प्राप्ति नहीं कर पाओगे। Like we heard the testimony here from Brother Vibin about that man in the plane that had a brain aneurysm, a brain stroke on the plane. अब उस व्यक्ति के बारे में गवाही हमने सुना, उस पासवान के बारे में, कैसे उनका ब्रेन उनका बंद हो गया या फिर एन्यूरिज्म हो गया और पैरालिटिक या फिर लकवा जैसे हो गया उन्हें। And on that plane, the ones that were with him, that were believers, they started to pray out loud and declare healing without having the fear of what people will think of them on that plane. आमीन। और उनके साथ जो परिवार था वो घोषित करने लगे यीशु मसीह के नाम से, ना कि ये सोचकर कि क्या लोग कहेंगे, हमारे इर्द गिर्द कौन है और क्या होने वाला है। If they would have been afraid, they would not have prayed. लेकिन डरे हुए होते तो वो नहीं डरते। If they were afraid, they would not have declared God's truth out loud with their mouth in that plane. यदि आप वो डरे हुए होते तो अपने मुंह से वाणी से परमेश्वर की घोषणा, अधिकार की घोषणा नहीं करते। As a result of them not being afraid, they spoke and they saw the victory. वो डरे हुए नहीं थे, इसके लिए उन्होंने विजय देखा और उन्होंने विजय प्राप्त किया। That person that had the stroke, who was paralyzed, half of his body, half an hour later was completely recovered. उनका जो लकवा हुआ, शारीरिक लकवा, आधे घंटे बाद सरल रीति पे आ गए और वो उठकर चल पाए और बात करने लगे। And there was no side effects, long-lasting side effects from that stroke. और उस स्ट्रोक से, लकवे के बाद उनके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं था कि दिखे कि उन्हें लकवा लगा था। This is the victory guaranteed for every single one of us who will stop being afraid. यही विजय प्राप्ति हम में से हर एक को प्राप्त होगी जो भी डरना बंद करेगा। Next time you're afraid, just say, because he lives, I can face tomorrow. अगले बार जब आप डरे रहोगे, आप कह पाओगे, क्योंकि वो जीवित है, मैं कल का सामना कर सकता हूँ। Because he lives, I can face my family. क्योंकि वो जीवित है, मैं अपने परिवार का सामना कर सकता हूँ। Because he lives, I can face my boss. क्योंकि वो जीवित है, मैं अपना बॉस का सामना कर सकता हूँ। Because he lives, I can face my failures. क्योंकि वो जीवित है, मैं अपने पराजित का सामना कर सकता हूँ। Because he lives, I can live this life with what I have. क्योंकि वो जीवित है, मैं अपने जीवन में जी सकता हूँ जो कुछ भी मेरे साथ है, पास है। Amen. So if you don't know Jesus Christ, यदि आप मसीह को नहीं जानते, then you are on your own. तो फिर आप आपके खुद पर हो। God is not doing anything in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। This victory is not for you. ये विजय आपके लिए नहीं है।
There is no hope for anything you are trying to do in your life. और आपके जीवन में वो कोई आशा नहीं है या फिर कल का कोई भरोसा नहीं है आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो। So if you want to change your life around and live in victory, you have to surrender to Jesus Christ. यदि अपने जीवन में विजय प्राप्ति करना चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो अपना जीवन परमेश्वर की ओर समर्पण करना पड़ेगा। The victory that God has for you might not be the one you have in your mind. परमेश्वर जो विजय आपके लिए रखा है, शायद वो आपके विजय के सोच के हिसाब से नहीं होगा। But once you see that victory, you will know it is perfect. लेकिन एक बार उस विजय को जब आप चखोगे, देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा यही परमेश्वर की योजना का विजय है। It will be made to measure to what you can completely enjoy. ये उस तरफ से तोला जाएगा विजय कि आप पूर्ण तरीके से उस विजय की आनंद प्राप्ति आप ले सको। Praise the This Lord। is the promise of Jesus Christ in the Bible. ये यीशु मसीह का वायदा है बाइबल में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे।